So I welcome you all to this online interview guidance session where we are going to learn about how to prepare for interview, whether it is a mock interview or your final interview. For any interview, how to prepare for interview, we will learn here. Okay. And I will not share the general things which you already know. I'll try to add something which is not in your awareness. ठीक है, हम कुछ ऐसी चीजें डिस्कस करेंगे जो शायद आपके अवेयरनेस में अभी तक नहीं थी इंटरव्यू को लेकर. प्लीज कीप योर सेल्फ ऑन म्यूट. प्लीज म्यूट योर सेल्फ अनलेस आई अलाउ यू टू स्पीक. Yes, thank you. So first of all, I'll introduce myself. My name is Parvez Khan. I am an NLP master practitioner, a psychology counselor, a corporate coach. For last 12 years, I have been training people for employability skills, communication, performance enhancements, leadership, and team building. I have traveled all over India. More than 300 colleges are my clients, and I have some corporate companies where I train their employees for performance enhancement. As far as interviews are concerned, so now I have completed almost 10 years of training for interview preparation, and I'm associated with Sarthi Education and many other institutes where I train job aspirants to get into their dream job, okay, and to crack the interviews, whether it is personal interview, group discussion, group exercise, group presentation, everything related to final interview, I provide the training. It was little about me. Let's go ahead and we'll talk about the interview preparation. As I hope you all are preparing for IBPS PO, and first you will practice your mock interviews and then you will go for your final interview. So whether it is a mock interview or a final interview, I will help you to perform better. Okay. And we'll use both the language, English and Hindi I'll use here. So it was little about me and about this program. And if you have any question, you can put in the chat box. Am I audible now? Yes. Please. Yes, sir, you are audible. Okay, thank you. Because see, if you are not able to hear me and if there is any issue with the video or audio, so please check your network, because I'm using very high speed internet because continuously I'm in online training. So I take care of my audio, video, my network, everything. I take a great care of this. So there are less chances uh, to have any technical error from my side. So please check yourself. Okay. Okay, मैसेज है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और डाला है. चलो ठीक है ये all okay. Okay, चलिए. So there are some participants, those who already attended my sessions earlier also, and those who are new, they will come to know how I conduct the batch and how I help the job aspirants to get into their job. तो मेरा करीबन 10 साल का एक्सपीरियंस है इंटरव्यू ट्रेनिंग का, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने हेल्प की है अपने जो भी जॉब उनका था उसमें प्लेस होने के लिए. ठीक है. कम्युनिकेशन मैं सिखाता हूँ, मेरा कोर एरिया है माइंड प्रोग्रामिंग एंड. प्लीज कीप योर सेल्फ ऑन म्यूट. हियर we will talk about why interview is conducted. This is a basic question. Okay. The basic question is why interview is conducted. So I will request you to note down the key points. ठीक है. इंटरव्यू कंडक्ट क्यों किया जाता है? ठीक है. तो इंटरव्यू कंडक्ट इसलिए किया जाता है कि एक कैंडिडेट की ओवरऑल पर्सनालिटी को जज कर सके, और पर्सनालिटी जज होती है उसके बिहेवियर से. उसके बिहेवियर से उसके स्किल्स पता चलते हैं, उसका माइंडसेट पता चलता है. ठीक है. उसकी इमोशनल स्टेबिलिटी पता चलती है,
उसका प्रोफेशनलिज्म पता चलता है। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इंटरव्यू इज द असेसमेंट ऑफ योर पर्सनालिटी, इट इज नॉट द असेसमेंट ऑफ योर नॉलेज। ठीक है, नॉलेज का असेसमेंट नहीं है ये। ठीक है, इट इज द असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी। ठीक है, अब पर्सनालिटी में क्या क्या आता है, व्हाट इज इंक्लूडेड इन पर्सनालिटी? सो रिमेंबर, पर्सनालिटी में इंक्लूड होता है आपका कम्युनिकेशन, आपका बिहेवियर, एंड हाउ डू यू हैंडल अ सिचुएशन। ओके, इमोशनली आप कितने स्टेबल हो, आप किसी जॉब को लेकर कितने एक्साइटेड हो। ठीक है, ये सारी चीजें पता चलती है आपके बिहेवियर से। ठीक है, तो यहां पर इंटरव्यू क्यों कंडक्ट किया जाता है, अगर ये हमको समझ में आ गया, वाई वाई इफ माई वाई इज क्लियर, है ना, मेरा अगर वाई क्लियर है तो मेरे लिए प्रिपेयर करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज होता क्या है, जनरली मैंने देखा है कि कैंडिडेट्स का एक जो रॉन्ग परसेप्शन टुवर्ड इंटरव्यू ये है कि इंटरव्यू है मतलब मुझे बहुत कुछ प्रिपेयर करना पड़ेगा, बहुत कुछ। तो बहुत कुछ मीन्स व्हाट, आप हर चीज नहीं सीखनी है आपको, हर स्किल्स डेवलप करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देर आर सर्टेन स्किल्स विच यू नीड टू डेवलप। ओके, जो कि इंटरव्यूअर जज करने वाला है। ठीक है, तो अपने आप को बहुत ज्यादा बर्डन भी नहीं करना है। ठीक है, कि एवरीथिंग आई शुड नो, एवरीथिंग आई शुड नो एवरीथिंग। सबसे पहले तो ये जो माइंडसेट है इसको रिमूव करो। ठीक है, यू डोंट नीड टू लर्न एवरीथिंग। ओके, हर चीज आपको सीखनी नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ वही चीज सीखनी है, वही चीज प्रैक्टिस करनी है जो फाइनल इंटरव्यू में जज होने वाली है। ठीक है, उसके बाद अब इंटरव्यू क्या होता है ना, व्हाट इज इंटरव्यू? सो इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। ठीक है, यानी जो इंटरव्यू लेने के लिए बैठा है, जो बैंक के जो पैनल्स बैठे हैं, दे आर देयर टू हेल्प यू। वो जॉब देने के लिए बैठे हैं वहां पे। ठीक है, ये कोई एमटीवी रेडियो का इंटरव्यू नहीं है, ये वो पिटाई करने के लिए बैठे हैं। उनका इंटेंशन क्लियर है, इंटेंशन इज वेरी क्लियर दैट वी आर हियर टू सेलेक्ट यू, वी आर हियर टू सेलेक्ट यू। ठीक है, तो इंटरव्यू होता, ठीक है, ये एक सिलेक्शन प्रोसेस है जिसमें कंपनी को एक सुटेबल कैंडिडेट चाहिए और एक कैंडिडेट को सुटेबल जॉब चाहिए। इट्स दैट इजी। तो इंटर बहुत ज्यादा उसको बहुत ज्यादा नेगेटिवली लेना, उसको उसकी बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट करना, ये अननेसेसरी है। ठीक है, तो इंटरव्यू को थोड़ा क्लोजली अगर ऑब्जर्व करो आप तो पता चलेगा कि इंटरव्यू है क्या। इंटर एंड व्यू, इंटर मीन्स बिटवीन टू, एंड व्यू मीन्स माई व्यू, माई ओपिनियन, है ना, मेरी सोच। ठीक है, सो अब इंटरव्यू क्या है? इंटर एंड व्यू, अ प्रोसेस ऑफ डिस्कशन बिटवीन टू पीपल, टू और मोर पीपल। ठीक है, यानी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप किसी व्यक्ति के सामने बैठोगे, वो आपको कुछ क्वेश्चन पूछेगा, आप उसके आंसर दोगे, और इंफॉर्मेशन भी वही है जो आपने प्रिपेयर की है। ऐसे नहीं होगा कि आपका इंटरव्यू बैंक का है और आपको वो आईटी पूछेगा या फार्मेसी पूछेगा। नहीं, जो आपने प्रिपेयर किया है उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाने वाले, आपकी अपनी लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने वाले। ठीक है, तो यहां पर व्हाट इज इंटरव्यू? इट इज अ प्रोसेस वेयर कॉन्वर्जेशन टेक्स प्लेस। एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर दो लोग एक दूसरे से बात करते हैं, इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछता है, कैंडिडेट आंसर देता है, और इंफॉर्मेशन भी वही जो आपने प्रिपेयर की है। ऐसा बहुत ज्यादा इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं है, अनएक्सपेक्टेड इंफॉर्मेशन नहीं है बहुत ज्यादा। देखिए, इंफॉर्मेशन इंटरव्यू में जो होती है, जो पूछी जाती है मोस्टली, वो क्या है? एक तो आपके बारे में, व्हाट इज योर प्रेजेंट, व्हाट इज योर पास्ट एंड व्हाट इज योर फ्यूचर। ठीक, सेकेंड, जो बैंक आप ज्वाइन करने वाले हो उससे रिलेटेड, और तीसरा ओवरऑल बैंकिंग इंडस्ट्री। ये तीन जो की पॉइंट्स है, इसी के आसपास पूरा इंटरव्यू चल रहा है आपका। ठीक है, तो क्या आप अपने बारे में नहीं जानते? बिल्कुल जानते हो। क्या आप बैंक इंडस्ट्री के बारे में नहीं जानते हो? बिल्कुल जानते हो। आप कई
कई दिनों से प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है। सो अपने आप को सेटिस्फाई करो कि जो इंटरव्यू में चीजें पूछने वाले हैं वो सब मुझे आता है, ऑलमोस्ट सभी आता है, ठीक है। हाँ, कुछ रह जाएगा, ठीक है। और कुछ रह जाएगा तो इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि किसी भी इंटरव्यू का कोई पैरामीटर नहीं है कि आपको 100 आउट ऑफ 100 आंसर देने पड़ेंगे, ठीक है। और इंटरव्यू इज नॉट द प्रोसेस ऑफ असेसिंग योर नॉलेज, इट इज द प्रोसेस ऑफ असेसिंग योर पर्सनालिटी, ठीक है। तो बहुत ज्यादा अपने आप को ऐसे हरास नहीं करना है कि मुझे ये भी आ जाना चाहिए, मुझे वो भी आ जाना चाहिए, ठीक है। जब तक टाइम है तब तक आप प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन टाइम आ गया है और अब आपके पास, आपको लगता है कि मैंने ये नहीं प्रिपेयर किया, मैंने वो नहीं प्रिपेयर किया, जितना प्रिपेयर कर सकते हो करना है, बट बी वेरी कॉन्फिडेंट, बी वेरी होपफुल दैट आई विल डू समथिंग, कुछ तो ठीक कर लूंगा मैं, कुछ तो ठीक कर लूंगा, ठीक? अपने आप को ये याद दिलाना, ठीक है। प्लीज म्यूट योर सेल्फ, प्लीज प्लीज एवरीवन प्लीज म्यूट योर सेल्फ। सो व्हाट इज इंटरव्यू? इट इज अ प्रोसेस ऑफ असेसिंग योर पर्सनालिटी, ठीक है। आपकी पर्सनालिटी असेस करने का ये एक प्रोसेस है, ठीक है। इसके बाद नाउ हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू, ठीक है। ये दो पॉइंट क्लियर है क्या? व्हाई इंटरव्यू? इंटरव्यू इज टू जज whether the candidate is suitable or not, ठीक है। एंड व्हाट इज इंटरव्यू? इट्स अ कॉन्वर्जेशन बिटवीन टू पीपल, दो लोगों के बीच में एक कॉन्वर्जेशन है जहां पर इंटरव्यूअर कैंडिडेट से कुछ क्वेश्चंस पूछेगा और वो भी उससे रिलेवेंट क्वेश्चन ही पूछेगा, ठीक है। या तो उसके अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड होगा या जो उसने प्रिपेयर किया है, दैट्स इट। बहुत ज्यादा इररिलेवेंट क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद नाउ हाउ टू प्रिपेयर, उसके बाद हाउ टू प्रिपेयर। अब हाउ टू प्रिपेयर को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, ठीक है। एक है प्री इंटरव्यू और एक है ड्यूरिंग इंटरव्यू, ठीक है। मीन्स व्हाट टू डू प्री इंटरव्यू, बिफोर इंटरव्यू करना क्या है हमको, ठीक है। तो देखिए, बिफोर इंटरव्यू इज ऑल अबाउट टू थिंग्स, प्रिपरेशन एंड प्रैक्टिस। बिफोर इंटरव्यू इज एवरीथिंग अबाउट प्रिपरेशन एंड प्रैक्टिस, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। क्या प्रिपेयर करना है, क्या स्टडी करनी है? सो एज ऑलरेडी यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग, यू आर स्टडिंग बैंकिंग, देखो बैंकिंग स्टडी करनी है आप, ठीक है। स्पेसिफिकली जिस पर्टिकुलर बैंक के लिए या आईबीपीएस के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हो उसकी स्टडी आपकी होनी चाहिए, ठीक है। बैंकिंग के जो कॉमन टर्म्स है, जो पॉलिसीज है, जो स्कीम्स है, वो आपको स्टडी करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद यू शुड स्टडी योर सेल्फ, अपने आप को स्टडी करना है आपको कि व्हाट इज मी, व्हाट आर माई एक्सपेक्टेशंस, है ना, व्हाट इज माई पास्ट, व्हाट इज माई प्रेजेंट, व्हाट विल बी माई फ्यूचर। ये अपने आप को अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि देखिए हो ये रहा है कि ये एक्सपीरियंस है मेरा कि इंटरव्यू में अक्सर कैंडिडेट्स टेक्निकल क्वेश्चन के आंसर तो दे रहे, बैंकिंग के क्वेश्चन के आंसर दे रहे, लेकिन जब उनके बारे में पूछा जा रहा है, जब पर्टिकुलरली कैंडिडेट के बारे में पूछा जा रहा है, तो वो बहुत ज्यादा बैफल हो जा रहा है, तो बहुत ज्यादा परेशान हो जा रहा है। क्यों? तो उसने कभी अपने बारे में ये चीज सोची ही नहीं थी, ये चीजें अपने बारे में डिसाइड ही नहीं की थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एक क्वेश्चन है कि वेयर डू यू सी योर सेल्फ आफ्टर 5 years, अब किसी ने ये सोच के ही नहीं रखा है कि 5 साल बाद, 10 साल बाद मैं कैसा दिखूंगा, मैं कहाँ रहूंगा, मेरी पोजीशन क्या होगी, ये किसी ने प्लान नहीं करके रखा है। तो जब ऐसा अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आता है तब कहीं ना कहीं कैंडिडेट परेशान होता है, ठीक है। सो रिमेंबर, ये दो चीजें आपको स्टडी करनी है। एक तो पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में आपको स्टडी करनी है जो कि बैंकिंग है आपका, और दूसरा खुद के बारे में, कि पास्ट के बारे में क्वेश्चन हो सकता है कि तुमने स्कूल में क्या किया, कॉलेज में क्या किया, ग्रेजुएशन के बाद क्या किया, ग्रेजुएशन से अभी तक का गैप क्यों है, ठीक है। और ये फील्ड क्यों चूज की, वो भी तो ऑप्शन था, ये भी तो ऑप्शन था। और अगर जॉब एक्सपीरियंस है तो वो जॉब क्यों छोड़ दी, ठीक है। वो जॉब से तुमने क्या सीखा,
कॉलेज से तुमने क्या सीखा, तुम्हारे सिलेबस से तुमने क्या सीखा, तुम्हारा सिलेबस में और ये जो बैंकिंग इंडस्ट्री है इसमें क्या रिलीवेंस है, वो एक्सपीरियंस यहाँ कैसे काम आएगा, ये सारी चीजें आपको अपने बारे में पता होनी चाहिए और अच्छे से प्रिपेयर करो उसको। ठीक है, अब उसका आसान तरीका क्या है, जस्ट सर्च कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस पीपीएस पीओ इंटरव्यू। क्वेश्चंस को आप सर्च करो और उसको प्रिपेयर करना शुरू करो। ठीक है, कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन, उसमें एचआर क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, ठीक है, उसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। ठीक है, जस्ट अ मिनट, मैं जरा ये म्यूट कर देता हूँ सबको। प्लीज प्लीज म्यूट योर सेल्फ प्लीज। नाउ इट्स बेटर। So we'll start again. So I was telling you what to prepare. Prepare about banking and prepare about yourself. ठीक है, क्योंकि अक्सर कैंडिडेट्स जब उनसे पर्सनल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनकी उनकी लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो अक्सर कैंडिडेट आंसर नहीं दे पा रहे। अब इसकी कई वजह, एक वजह तो कभी प्रिपेयर नहीं किया, मैंने अपने बारे में कभी ये सोचा ही नहीं था कि मुझे इस बात का जवाब देना पड़ेगा। और दूसरा, अगर इंफॉर्मेशन पता भी है तो इमोशनल इतने हो रहे, इतने ज्यादा इमोशनल हो जा रहे कि वो आंसर ही नहीं दे पा रहे। ठीक है, ये दो रीजन है। देखिए, कभी भी आपके जो एचआर क्वेश्चंस होते हैं ना, और आपसे रिलेटेड पर्सनल जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कोई कैंडिडेट आंसर क्यों नहीं दे पा रहा है, उसकी यही दो रीजन है। एक तो कभी मैंने अपने बारे में ऐसे सोचा नहीं, मैंने इस इंफॉर्मेशन के बारे में आंसर प्रिपेयर ही नहीं किया। और दूसरा, या तो वो बहुत इमोशनल हो जा रहा है, बहुत पर्सनल ले ले रहा है उस इंफॉर्मेशन को। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, पर्सनल क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, रिगार्डिंग योर फैमिली, है ना, रिगार्डिंग योर वेरी पर्सनल लाइफ। ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सो डोंट बी वेरी पैनिक, डोंट बी इमोशनल, डोंट बी टू फ्रेंडली, बहुत ज्यादा फ्रेंडली भी नहीं होना है। ठीक है, बैलेंस द प्रोफेशनलिज्म। ठीक है, ये मेंटेन करना। ठीक है, उसके बाद आप, ये आपने प्रिपरेशन किया, अब इसको प्रैक्टिस करना है। देखिए, ये प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हो ये रहा है कि आपको पता सब है, आप पढ़ सब रहे हो, ठीक है, बैंकिंग की भी प्रिपरेशन कर रहे हो और सारे टर्म्स आपको पता है, सारे डूज एंड डोंट्स आपको पता है। ठीक है, उसके बावजूद आप इंटरव्यू में आंसर क्यों नहीं दे पाते हो? क्योंकि आपको हैबिट नहीं है, आदत नहीं है वो इन्फॉर्मेशन स्पीक करने की। यानी आप अगर 6 महीने से प्रिपेयर कर रहे हो, साल भर से प्रिपेयर कर रहे हो, 2 साल से प्रिपेयर कर रहे हो, सो प्रिपेयर मीन्स व्हाट? आप सिर्फ रीड कर रहे हो, आप या तो रीडिंग कर रहे हो या राइटिंग कर रहे हो, रीडिंग कर रहे हो या राइटिंग कर रहे हो, आपने उस इंफॉर्मेशन को ओरली कभी प्रेजेंट नहीं किया। तो प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करो। जितनी इंफॉर्मेशन इंटरव्यू में एक्सपेक्टेड है, उस इंफॉर्मेशन को अब बोलना शुरू करो, ओरली शेयर करना शुरू करो। अब उसके लिए जरूरी नहीं कि हर बार मॉक इंटरव्यू करोगे आप, चलते फिरते अपने फ्रेंड्स के साथ जब बात कर रहे हो, सो इन अ वेरी प्रोफेशनल मैनर सेम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो, ऐसे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो कि वो सामने वाला इंटरव्यूअर, वो इंटरव्यूअर है, वो आपका इंटरव्यू ले रहा है, अपने फ्रेंड्स के साथ पर्टिकुलर जिस टॉपिक पे डाउट है, जो इंफॉर्मेशन आपको शेयर नहीं करने आ रही है, उस इंफॉर्मेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत ही प्रोफेशनल मैनर में शेयर करो। ठीक है, चलिए, तो प्रैक्टिस का ये एक तरीका है। ठीक है, देखिए, अभी ये सेशन हमारा 10 मिनट में शायद ये बंद होगा, वापस उसी लिंक को क्लिक करके वापस ज्वाइन करना है। ठीक है, यस एवरीवन, प्लीज ज्वाइन द लिंक वंस अगेन, अगर ये सेशन हमारा यहाँ खत्म होता है तो, क्योंकि वो उसका लिमिट है। ठीक है, तो लिमिट आपको वापस से उसी लिंक पे क्लिक करके वापस से ज्वाइन करना है। ठीक है,
चलिए मैं यहाँ मैसेज भी डाल देता हूँ आपको। हम्म, हाँ। तो प्रिपरेशन के बाद में जो प्रैक्टिस है, देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो रहा है, मैं अक्सर स्टूडेंट्स के जब मैं बात करता हूँ तो कहते हैं सर मेरे को ये आता है वो आता है। सर जब मैंने प्रिपेयर किया तब मेरे को सब याद था, मैंने क्लास में जब मॉक टेस्ट दिया, मॉक इंटरव्यू दिया, तब मैंने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया, लेकिन मैं जब गया वहां पे फाइनल के लिए तो मैं वहां कुछ बोल ही नहीं पाया। ये इन्फॉर्मेशन मुझे पता थी लेकिन मैं प्रेजेंट नहीं कर पाया। उसकी एक ही वजह है, यू प्रिपेयर्ड टू अंडरस्टैंड, यू डिड नॉट प्रिपेयर टू प्रेजेंट। ये डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या? यू प्रिपेयर्ड टू अंडरस्टैंड ओनली, आपने प्रिपेयर किया है समझने के लिए, आपने प्रिपेयर प्रेजेंट करने के लिए नहीं किया है। तो यहां ऐसा नहीं चलेगा, अब आपको दोनों के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। प्रिपेयर टू अंडरस्टैंड एंड प्रिपेयर टू प्रेजेंट। ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू इज अ प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटेशन, वहां प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा। वहां इंटरव्यूअर कोई स्कैनर लेके नहीं बैठा है कि आपकी पूरी मेमोरी चेक कर लिया, अरे इसको तो सब पता है ना। कोई स्कैनर नहीं है वहां पे कि आपके ऐसा लगा के देख लिया कि अरे इसको तो सब पता है, इसको तो सब आता है। नहीं, जब तक आप प्रेजेंट नहीं करोगे तब तक सामने वाले को पता नहीं चलेगा कि आपको क्या पता है। ठीक है, और कैसे प्रेजेंट करोगे ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो हाउ टू प्रिपेयर, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इट। ठीक है, हाउ टू प्रिपेयर। तो पहले तो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, मोस्ट कॉमनली आस्क क्वेश्चंस की लिस्ट बनाओ, उसके आंसर्स, अपने खुद के आंसर्स बनाओ, उसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। ठीक है, व्हाट्सएप कर दो उसको। एक को नहीं कर सकते तो चार पांच पकड़ लो, इसको 10 क्वेश्चन दे दो, उसको 10 दे दो, उसको 10 दे दो, और उसको पूछो मुझे क्वेश्चन पूछ। जरूरी नहीं फिजिकली मिलना है, आप एक जगह पर बैठ जाओ, हेडफोन लगाकर बैठो और सामने वाले को पूछो कि चल मुझे वो एक एक क्वेश्चन पूछ एंड आई विल आंसर। इस तरह से प्रैक्टिस करो। ठीक है, क्योंकि देखिए मैं बता रहा हूं आपको, कम्युनिकेशन, बिकॉज पिछले 12 साल से मैं कम्युनिकेशन स्किल सिखा रहा हूं, और टाइम पर अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो उसकी एक ही रीजन है, यू आर नॉट हैबिचुअल। आपको हैबिट नहीं है उस फॉर्मेट में बात करने की, उस इन्वायरमेंट में बात करने की आपको हैबिट नहीं है। तो थोड़ी बहुत तो हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी आप। ठीक है, सो प्रैक्टिस के जरिए हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी कि मैं एक फॉर्मल मैनर में बात कर सकता हूं। ठीक है, तो ये हो ये रहा है, देखिए हो ये रहा है कि हम अपने इन जनरल, इन जनरल जो हमारी लाइफ है उसमें हम बहुत कैजुअल कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, बहुत कैजुअल, यानी हम बहुत ही कैजुअल है, यानी हम उसमें कोई फ्रेजेस नहीं है, उसमें सॉरी थैंक यू प्लीज एक्सक्यूज मी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, वॉइस की तरफ हम बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। तो हमारा एक्चुअल जो डे टू डे लाइफ में जो कॉन्वर्सेशन हो रहा है वो बहुत कैजुअल है, और अचानक इंटरव्यू में जाने के बाद वो फॉर्मल नहीं होने वाला। तो उसके लिए पहले से ही फॉर्मल कॉन्वर्सेशन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए ये था प्री इंटरव्यू। अब प्री इंटरव्यू में कुछ जो जनरल इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं वो ये है कि चेक योर ड्रेस, अपीयरेंस आपका फॉर्मल होना चाहिए। ठीक है, बहुत ज्यादा डार्क बहुत ज्यादा लाइट, मतलब अनप्रोफेशनल नहीं होना चाहिए, फॉर्मल ड्रेस कोड होना चाहिए। ठीक है, आपका बहुत ज्यादा ऑर्नामेंट्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, हेयर स्टाइल आपकी कन्वेंशनल होनी चाहिए। बिफोर गोइंग टू इंटरव्यू आपको प्रॉपरली आपने हेयर स्टाइल मैनेज करनी चाहिए, आपकी फॉर्मल हेयर स्टाइल होनी चाहिए, आपका फुटवेयर फॉर्मल होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें आपको चेक करनी है। ठीक है, बिफोर गोइंग टू इंटरव्यू यू शुड हैव हेल्दी फूड। ठीक है, एम्प्टी स्टमक नहीं जाएंगे। ठीक है, और बहुत हेल्दी मीन्स अनहेल्दी जंक फूड भी नहीं लेंगे। ठीक है, बिकॉज इंटरव्यू में जाकर आपको परफॉर्म करना है, और परफॉर्म करने के लिए आपको फ्रेश और हेल्दी रहना है। ठीक है, सो टेक केयर ऑफ योर फूड एंड योर स्लीप। ठीक है, अगर आपका इंटरव्यू कोई और शहर में, फॉर एग्जाम्पल आई थिंक योर इंटरव्यू इज इन मुंबई। ठीक है, तो वहां पर आपको करना यह है कि जहां पर भी आपका लोकेशन है इंटरव्यू का, उसके आसपास वॉकेबल डिस्टेंस पे ही आपको होटल या लॉज लेनी है। ठीक है, बहुत दूर नहीं लेना है। आप सोचते हो कि नहीं मुझे लोकल ट्रेन पता है और मुझे बस पता है और टैक्सी पता है, तो आपको ट्रैफिक नहीं पता है फिर। ठीक है, ट्रैफिक नहीं पता है। ठीक है, आपको लगता है कि मैं 10 मिनट में ट्रेन से पहुंच जाऊंगा, आपको ट्रैफिक, आपको ट्रेन का क्राउड नहीं पता है फिर। ठीक है,
तो मेक श्योर जहां भी आपका इंटरव्यू लोकेशन है वहां से आपका अकोमोडेशन बिल्कुल वॉकेबल डिस्टेंस पे होना चाहिए कि आप वहां पर वॉक करके जा सकते हो, ठीक है। ऑटो ले सकते हो, वो अलग बात है, लेकिन डिस्टेंस इतना कम होना चाहिए, ठीक है। उससे होगा ये कि आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगा, ठीक है। आपकी एनर्जी अननेसेसरीली ट्रैवलिंग में स्पेंड नहीं होगी, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं बिफोर इंटरव्यू, ठीक है। नाउ ड्यूरिंग इंटरव्यू, अब इंटरव्यू के दौरान क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले तो वहां पे कम से कम आधा घंटा पहले पहुंचने की कोशिश करो, ठीक है। एक बार आप वहां पहुंच गए, वहां पहुंचने के बाद सबको इन्फॉर्म करो दैट आई हैव कम फॉर इंटरव्यू, आई हैव कम फॉर इंटरव्यू, ठीक है। ताकि आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने की जरूरत ना पड़े कि मैं कहाँ जाऊं, कहाँ बैठूं, किससे बात करूं, और इसमें आपका टाइम स्पेंड ना हो, ठीक है। और वहां पहुंचने के बाद जब आप वेटिंग लॉन्ज में हो तो वहां पर अननेसेसरी कॉन्वर्जेशन नहीं करनी है, ठीक है। बी वेरी प्रोफेशनल, वहां पर आप अननेसेसरी टॉक किसी से भी नहीं करेंगे, ठीक है। कैरी योर ओन बिजनेस मैगजीन या बैंकिंग मैगजीन, कोई प्रोफेशनल मैगजीन कैरी करो, जब तक आपका नंबर नहीं आता है यू कैन रीड दैट, ओके। या अपना न्यूज़पेपर कैरी करो, ठीक है। मोबाइल फोन लेकर के नहीं बैठना है, ठीक है। आपने तो टाइम है तो आप निकल के बैठ गए, मोबाइल गेम खेल रहे हो या सोशल मीडिया सर्फ कर रहे हो। रिमेंबर योर इंटरव्यू स्टार्ट्स द मोमेंट यू एंटर इनटू द प्रीमाइसेस। जब आप इंटरव्यू के जो लोकेशन के प्रीमाइसेस में एंटर करते हो, सीसीटीवी कैमरे से आपको मॉनिटर किया जा रहा है, ठीक है। और जो सेलेक्टर्स है वो आपको कंप्लीटली देख रहे हैं। तो इंटरव्यू ये नहीं है कि आप कैबिन में एंटर होने के बाद इंटरव्यू शुरू हो रहा है। आप जैसे ही आप एंटर होते हो प्रीमाइसेस में, सीसीटीवी कैमरे के जरिए आपको ऑब्जर्व किया जा रहा है और आपका इंटरव्यू शुरू हो गया, ठीक है। तो लुक वेरी प्रोफेशनल, ठीक है। उसके बाद जब आपका नाम पुकारा जाए, देन गो टूवर्ड द कैबिन, नॉक द डोर, ओके। सी नॉकिंग द डोर इज टू गेट द अटेंशन, ठीक है। नॉकिंग द डोर इज टू गेट द अटेंशन, ठीक है। और जैसे ही वहां से इंटरव्यूअर ने आपका नॉकिंग देख लिया, देन यू कैन टेक द परमिशन, परमिशन आप ले सकते हो। परमिशन लेने के बाद व्हेन यू आर अलाउड से थैंक यू, go toward the chair, again take the permission that may I sit, और जैसे ही अलाउ किया अगेन सिट डाउन एंड से थैंक यू। बी वेरी रिलैक्स, बी वेरी रिलैक्स, ठीक है। अब रिलैक्स रहोगे कैसे आप, अगर आप अपने आप को दो ही बातें याद दिलाओगे, दो बातें याद दिलाओगे। एक, आई एम सुटेबल